اختتام کی طرف ہے۔ اب بچوں کو انعامات تقسیم کرنے سے پہلے ہمارے مہمان مولانا عبدالرحمان صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو کچھ نصیحتی باتیں ارشاد فرمائیں۔ مولانا عبدالرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، مدرسہ دارالانوار تعلیم القرآن کے سرپرست حضرت مولانا فوزان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم اور دعوت پر یہاں تقریباً چوتھی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ان حضرات کی محبت اور محنت ہے کہ یہ گلدستہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے واقعتاً محنت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ بھائی احسان علی قریشی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں جو جگہ عنایت فرمائی ہے، اور واقعتاً یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن رابعا، چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہی ہے کہ ان بچوں سے، ان طلبہ کرام سے، ان قرآن والوں سے، ان قاری صاحبان سے اور ان اساتذہ کرام سے محبت ہو، عقیدت ہو اور ان کا احترام دلوں میں موجود ہو۔ کیونکہ یہ طبقہ، یہ عام طبقہ نہیں ہے، یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، ان کے سینوں میں وہ قرآن ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، ان کے سینوں میں وہ قرآن ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، ان کی زبانیں قرآن سے تر ہے۔ آپ ذرا باہر نکلیں اور باہر کی دنیا میں نکلے، کتنی فحاشی ہے، کتنی عریانی ہے اور کس قسم کے گناہ میں لوگ مبتلا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ جو سرپرست حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، کہ آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا، آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا، اور ان بچوں کے سینوں میں وہ دولت موجود ہے جو بہت بڑی دولت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کے بیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، یہ تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کتاب کو سب سے بہترین فرشتے کے ذریعے سے اور سب سے بہترین رسول پر اور سب سے بہترین مہینے میں اور سب سے بہترین شہر مکہ اور مدینہ میں اور سب سے بہترین لغت عربی میں اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ بہت بڑی دولت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ان بچوں نے حاصل کی ہے۔
बेहतरीन किताब आसमानी किताबें 4 है, तौरात, जबूर, इंजील, कुरानी मजीद। इन 4 किताबों में सबसे बेहतरीन किताब कुरानी मजीद है। वो इन बच्चों ने पढ़ लिया, वो इनके सीनों में मौजूद है। जो सबसे बेहतरीन फरिश्ता तमाम फरिश्तों में, तमाम मलाइका में जो सरदार फरिश्ता है जिब्राइल, नज़ल बिही रूहुल अमीन, उनका लक़ब क्या है? रूहुल अमीन, लाने वाला फरिश्ता सबसे मुअज़्ज़ज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, आपके क़ल्ब मुबारक पर कुरान मजीद उतरा है, जो तमाम रसूलों में सबसे बेहतरीन रसूल है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन बच्चों ने कोई मामूली दौलत नहीं हासिल की है, बहुत बड़ी दौलत हासिल की है। नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन, जो सारी कायनात पर जिनकी फौकियत है, जो सबसे आला है, लाने वाला फरिश्ता जो तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता है, नाजिल होने वाली किताब कुरानी मजीद जो सबसे बेहतरीन किताब है, और जिन पर नाजिल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम रसूलों में सबसे अफजल है। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है। और हम सब का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बढ़कर है, आपका मकाम सबसे बढ़कर है। और सबसे बेहतरीन जबान अफ़सहुल लुगात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान और बनु जुरहम की जबान, अरबी जबान, उसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के महासिन और शराइत, फसाहत, बलागत, हर लिहाज से अल्लाह ने कुरान को मुकम्मल कर दिया। एक देहाती कहीं से गुजर रहा था, उसने कुरान मजीद की तिलावत सुनी, उसके कान में ये आयत पड़ी, फस्दा बिमा तुअमर, ये आयत उसके कान में पड़ी, उसने फौरन सजदा किया। किसी ने कहा भाई तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, ये सजदा तुमने किसको किया, किसको सजदा किया? उस देहाती ने कहा, अरब लोग थे, अरबी जानते थे, अरबी समझते थे, उन्होंने कहा मैं वाकईतन काफिर हूं, मैं वाकईतन मुशरिक हूं, लेकिन मैंने सजदा कुरान मजीद की बलागत को किया है, कुरान मजीद की फसाहत को किया है। अल्लाह ने ऐसी बलागत और ऐसी फसाहत रखी है। उस्मान बिन मासूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होने से पहले अल्लाह के नबी के पास आए, कहा कि देखो मैं पूरी बात नहीं सुनूंगा, मुझे दीन का खुलासा चाहिए। ए मोहम्मद, आप इस्लाम का दर्स देते हैं, आप कुरान की तालीमात देते हैं, आप दीनी मालूमात बताते हैं, मुझे पूरा दीन नहीं बताओ, मुझे पूरा कुरान नहीं सुनना, मुझे सिर्फ खुलासा बताओ, इस दीन का खुलासा बताओ। खुलासा क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानी व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य। ये आयत जुम्मों में आप लोग सुनते होंगे खुतबों के अंदर। एक आयत की तलावत की उस्मान बिन मासूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये हाथ हथौड़ी के नीचे रखकर इस दाढ़ी को मिलाकर अल्लाह के नबी की तरफ देख रहे थे, और ये आयत सुनने के बाद फौरन मुसलमान हो गए। कहा कि कुरान मजीद के अंदर ऐसी बलागत, ऐसी फसाहत कि एक ही आयत के अंदर अल्लाह ने पूरे दिन का खुलासा बयान कर दिया। मेरे मोहतरम वालिदैन, सरपरस्त हज़रात, आपके बच्चों ने मामूली किताब नहीं पढ़ी, आपके बच्चों ने बहुत बड़ी दौलत हासिल की है। आप बड़े खुश नसीब है, आप अल्लाह की कसम कहकर कहता हूं आप बहुत खुश नसीब है। कल हशर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, आपके खानदान, आपके अजीज अकारिब, आपके जानने वाले, आपके दोस्त अहबाब सब हशर के मैदान में खड़े होंगे। अल्लाह ताला इन मासूम बच्चों को बुलाएंगे, अल्लाह हशर के मैदान में इन मासूम को बुलाएंगे, अपने सामने हासिल करेंगे और इनसे कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल, तुम कुरान को पढ़ो। और ये सामने जन्नत की सीढ़ियां हैं, इन जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। कुरान को शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठहर ठहर कर पढ़ो, जिस तरह तुम दुनिया में पढ़ते थे ये ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता पढ़ेगा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जाएगा। पूरी बात सुनिएगा, बात पूरी सुनिएगा। ये हाफिज बच्चे ये कुरान को पढ़ेगा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जाएगा। जहां कुरान खत्म हुआ, मिनल जिन्नति वन नास, जहां कुरान खत्म हुआ, जहां से शुरू किया था, जहां खत्म हुआ, ये सारी जन्नत इसकी हो गई, ये सारी जन्नत
इस हाफिज कुरान की हो गई है। फिर अल्लाह ताला इन हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाएंगे। इन बच्चों को तो एहसास मिल गया, ये तो चले गए जन्नत में, चले गए जन्नत में। अल्लाह हशर के मैदान में इन वालिदैन को बुलाएंगे, अपने सामने खड़ा करेंगे, मुझे बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके सोचो, हशर का मैदान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, अब से लेकर क़यामत तक सारे इंसान मौजूद होंगे, सारे इंसान मौजूद होंगे, हशर का मैदान होगा। उस दिन अल्लाह ताला अगर किसी को आवाज दे, किसी को बुलाए कि तुम मेरे करीब आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा, तुम्हें एहसास दिया जाएगा, तुम करीब आ जाओ, उस दिन उस बंदे की खुशी का आलम क्या होगा। अब जरा सोचो, जरा हशर का मैदान होगा, अल्लाह इन वालिदैन को सामने करेंगे और इनसे कहा जाएगा, भाई तुम्हारे बच्चों ने पढ़ लिया, वो चले गए जन्नत में, लेकिन तुम भी महरूम नहीं हो, तुम भी सामने आओ। अल्लाह ताला इन वालिदैन के सरों पर एक ऐसे ताज को अल्लाह रखेंगे। सुनो हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सहाबा इकराम को मिसाल देकर समझाई। ये बात आपने बारहा सुनी होगी, लेकिन आप इसको जरा इस अंदाज से सुनिएगा कि अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर समझाई। कहा कि देखो दुनिया वालों, मुझे बताओ, ये आफ्ताबी दुनिया है, ये दुनिया का सूरज है, इसकी रोशनी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, मैं आप तस्वर नहीं कर सकते। 2 मिनट के लिए हम सूरज को देख नहीं सकते, रोशनी इतनी ज्यादा है कि आंखें आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसी सूरज को, इसी आफ्ताब को लाकर एक कमरे में बंद कर दे, यहाँ इस कमरे में बंद कर दो, अव्वल तो मुमकिन नहीं है, मुमकिन कर लो, फर्ज कर लो कि हो गया, ये सूरज लाकर मैंने किसी कमरे में बंद कर दिया, मुझे बताओ उस कमरे के अंदर रोशनी कितनी ज्यादा होगी, उस कमरे के अंदर रोशनी कितनी ज्यादा होगी। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा है, हम तो देखना क्या, हम तो उसको मतलब तस्वर नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा रोशनी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं आप कमजोर थे, मुझे आपको समझाने के लिए हुजूर ने मिसाल दी है। कहा कि देखो कल क़यामत के दिन जो हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर जो ताज को रखा जाएगा, उसकी रोशनी उस सूरज से भी ज्यादा होगी जो सूरज घर के अंदर बंद है, उससे भी ज्यादा होगी। ये चमक रहे होंगे हशर के मैदान में, ये वालिदैन, ये सरपरस्त, ये चमक रहे होंगे। इनको आम दौलत इन बच्चों ने हासिल नहीं की है मेरे मुहतरम, ये बहुत बड़ी दौलत इन्होंने हासिल की है। इन्होंने अपने सीने में कुरान को लिया है, मामूली बात नहीं है, सीने में कुरान को लिया मामूली नेमत नहीं है, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत इन बच्चों ने हासिल की है। अल्लाह ताला आप तमाम वालिदैन हजरात को और इन बच्चों को और इन सरपरस्तों को और इंतजामिया को, मौलाना फौजान साहब को, भाई एहसान अली कुरैशी साहब को अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए कि इनकी मेहनतों से ये गुलदस्ता चल रहा है, ये मेहनत चल रही है, ये दीन की खिदमत चल रही है। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसके माशाअल्लाह, जहां पर इन बच्चों की मेहनत है, जहां पर इन वालिदैन की मेहनत है, जहां पर इंतजामिया की मेहनत है, वहां सबसे ज्यादा मेहनत इन असातिज़े किराम की है, वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत इन कारी साहिबान की है। मैंने बच्चे को मदरसे भेज दिया, मदरसे के हवाले कर दिया, सरपरस्त मदरसे में बच्चे को भेज दिया, लेकिन शब रोज इन पर मेहनत करना, इनका सबक सुनना, इनकी सबकी मंजिल सुनना, इन पर मेहनत करना, इनकी तजवीज की रियायत रखते हुए इनको सबक याद करवाना, पारे याद करवाना, ये सबसे ज्यादा मेहनत इन कारी साहिबान की है। अल्लाह ताला इन तमाम कारी साहिबान को बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।